Accounting treatment of goodwill at the time of admission of new partner. Practical questions observe करते हैं. D and N, two partners sharing profit and losses in the proportion of 3:2. A is admitted for 1/5 share in profit. A's contribution for capital is 30,000 and A's goodwill contribution is 10,000. Firm's old goodwill shown in the books discloses 3,000. New profit sharing ratio between D, N and A is given as 5:3:2. So their new share is 5/10, 3/10 and 2/10. Now if we observe internal proportion between D and N, ओल्ड रेशियो में 3:2 था, न्यू में 5:3 है, इसलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू कंप्यूट सेक्रीफाइस because necessary entry for goodwill is always in sacrificing ratio. So sacrifice equals to old share minus new share. D का old share है 3/5, N का है 2/5 minus their new share which is 5/10 and 3/10. So sacrifice is amounted to 1/10 for both the partners. So sacrificing ratio between D and N is arrived at 1:1. Now necessary journal entries. First of all, old goodwill is to be written off which is 3,000. So D's capital, N's capital, 2 goodwill. 1800 and 1200 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. देन कंट्रीब्यूशन मेड बाय न्यू पार्टनर इज 30,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. टोटल 40,000 contributed by way of capital is 30,000 and by premium for goodwill is 10,000. Then premium for goodwill is credited to partners in their sacrificing ratio. Sacrifice made by D and N in equal proportion. So 5,000 to each partner. सो गुडविल की एंट्री हमेशा हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ऑलवेज इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर टू पार्टनर एस एंड एम. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एज 3:2. ए इज एडमिटेड. अब क्वेश्चन में यहाँ पे सरेंडर वैल्यू दी गई है कि एस सरेंडर 1/5 ऑफ हर शेयर एंड एम सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर. एस अपने शेयर में से 1/5 शेयर और एम अपने शेयर में से 2/5 शेयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स न्यू पार्टनर ए. तो पहला कैलकुलेशन हम सेक्रीफाइस का करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला है ओल्ड शेयर इनटू सरेंडर वैल्यू. तो एस का ओल्ड शेयर है 3/5, 3/5 का 1/5, तो एस का सरेंडर हुआ 3/20, एस का सेक्रीफाइस हुआ 3/25. एम के केस में उसका ओल्ड शेयर है 2/5 और 2/5 में से 2/5 शेयर दे रहा है वो, इसलिए 2/5 इंटू 2/5, तो एम का सेक्रीफाइस हुआ 4/25. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन एस एंड एम is arrived at 3:4. Now share of A is combination of sacrifice of S and M. S और M के sacrifice का एडिशन करने से नए पार्टनर A का शेयर बनेगा. तो A का शेयर होगा 3/25 plus 4/25 is 7/25. Now firm's goodwill is given as 75,000 and A brings her share in cash. So 75,000 का पहले A का शेयर निकालेंगे 7/25. Amount is 21,000. First entry is bank to premium for goodwill. There is no information about new partner's capital. So straightway सीधी goodwill की entry पास करेंगे. पहली entry bank to premium for goodwill 21,000 and then premium for goodwill to S capital and to M capital in their sacrificing ratio. Sacrificing ratio of these two partners is 3:4. So 9,000 and 12,000 respectively out of premium for goodwill. Now in next question there are two partners S1 and S2. Their old profit sharing ratio is 5:2. So old share is 5/7, 2/7. S3 is admitted with 3/8 share and new profit sharing ratio after S3 is given as 2:3:3. 2:3:3 is their new profit sharing ratio and 5:2 is old profit sharing ratio. Now we compare old and new. If we compare old and new, so internal proportion is different. So first requirement is to compute sacrifice. Sacrifice equals to old share minus new share. S1 का ओल्ड शेयर है 5/7, S2 का है 2/7. उसमें से उनके न्यू शेयर 2/8 और 3/8 माइनस करने पे S1 sacrifice is 26/56 and S2 is a gaining partner and S2's gain is 5/56. Firm's goodwill is given as 84,000. तो हमें S3 का शेयर निकालना है जो कि न्यू पार्टनर है. S3 का शेयर है 3/8, तो S3 के लिए गुडविल की अमाउंट आएगी 31,500 एंड टू द एक्सटेंट ऑफ गेन मेड बाय S2 के गेन जितनी अमाउंट, तो 84,000 का 5/56 करने पे 7,500 इज फॉर S2's गेन. नाउ नेसेसरी एंट्री. फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू S3's capital and to premium for goodwill. S3's capital contribution is 60,000 and premium for goodwill is contributed as 31,500 because firm's goodwill is 84,000.
उसमें से न्यू पार्टनर अपने हिस्सा यानी 31,500 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 91,500 टू S3 कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल अलोंग विद दिस गेनिंग पार्टनर शेयर 7,500 इज क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. पर ये क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है S1, इसलिए न्यू पार्टनर का गुडविल कंट्रीब्यूशन और ओल्ड गेनिंग पार्टनर के गेन जितनी जो गुडविल की अमाउंट है वो टोटली S1 के कैपिटल में जाएगा जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. 39,000 इज क्रेडिटेड टू S1. आफ्टर दैट यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के लिए हमने यहाँ नेसेसरी कैपिटल अकाउंट ओपन किया है जिसमें पार्टनर्स के बैलेंसेस है 48 एंड 42,000. कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ S3 इज 60,000, सो बाय बैंक S3 में 60,000. नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एंट्री पास करेंगे तो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल और S2 को डेबिट करना है, S1 क्रेडिट होगा. तो प्रीमियम फॉर गुडविल एंड S2 डेबिट टू S1. तो S1 की क्रेडिट साइड पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बाय S2 और S2 के डेबिट साइड पे टू S1 7,500. उसके बाद कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस 87,000, 34,500 एंड 60,000 मिलेंगे. ये बैलेंसेस को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे प्लेस करने पे तीनों की कंबाइंड कैपिटल 181500. देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट अदर देन दिस कैपिटल एंड बैंक. बैंक बैलेंस इज इंक्रीज. बैंक का ओरिजिनल बैलेंस 6,000 दिया है, इसमें ये न्यू पार्टनर का कंट्रीब्यूशन टोटल 91,500 कैपिटल और गुडविल मिला के ये प्लस करने पे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 97,500 एंड बैलेंस शीट टोटल विल बी 2,59,500. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में PJ दो पार्टनर है, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. PNL टू पार्टनर्स 3:2 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. J इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. न्यू PSR इज नॉट गिवन, तो ओल्ड के हिसाब से इंटरनल प्रोपोर्शन आएगा और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा. फर्म की गुडविल है 6 लाख. J's contribution is in form of different type of assets, means in form of kind, stock of 60,000, land of 1 lakh, debtors of 80,000 and plant and machinery is of rupees 40,000. So 4 एसेट उसने कंट्रीब्यूट किया है, स्टॉक, लैंड, डेटर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी. पहले हमें फर्म की गुडविल चेक करनी है जो कि 6 लाख है. उसमें से जे का शेयर 1/4 फाइंड करे तो 1,50,000 हो रहा है. उसके एसेट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 2,80,000 है. 280 में से अगर 1,50,000 उसके हिस्से की गुडविल है, 2,80,000 टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स है, इसमें से 1,50,000 अगर उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है तो 1,30,000 नेसेसरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ. तो ये एंट्री इस तरह से हम पूरी करेंगे. स्टॉक डेबिट, लैंड डेबिट, डेटर्स डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू जेस कैपिटल 1,30,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000. आफ्टर दिस 1,50,000 विल बी शेयर्ड बिटवीन P and L इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के हिसाब से ही चलेगा, इंटरनल प्रोपोर्शन सेम रहेगा. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो 3:2. तो 1,50,000 को 3:2 में पार्टनर P और L में डिवाइड करने पे 90,000 एंड 60,000 की अमाउंट आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में S and K, there are two partners, 2:3 is their internal profit sharing ratio. A is admitted 1/4 share and after admission of A, new profit sharing ratio is 3:3:2. 3:3:2 is the new profit sharing ratio. Internal proportion of S and K is not same, so first requirement is to compute sacrifice. Sacrifice equals to old share minus new share. S और K के old share है 2/5 and 3/5 में से उनके new share 3/8 3/8 माइनस करने पे उनके sacrifice की अमाउंट आएगी 1/40 and 9/40. So sacrificing ratio of S and K is 1:9. A का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 2 लाख और A का गुडविल का कंट्रीब्यूशन है 36,000 एंड कैपिटल इज फिक्स. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एंट्री पास कर रहे हैं अदर देन कैपिटल, जो एंट्रीज पास कर रहे हैं वो सब करंट अकाउंट थ्रू पास होगी. तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. कैपिटल के 2 लाख और गुडविल के 36,000, टोटल अमाउंट 2,36,000 इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल में से एस और के करंट अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 36,000 इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज 1:9. So 3600 for partner S and 32400 for partner K. तो PFG to S current to K current एंट्री होगी. अब इसमें से ये गुडविल की अमाउंट इन लोगों ने विड्रॉ किया है, एंटायर अमाउंट इज विड्रॉन बाय आवर पार्टनर. सो S करंट K करंट टू बैंक अकाउंट, ये जो उनके हिस्से पे क्रेडिट हुआ है गुडविल का पैसा
वो लोग विड्रॉ करेंगे एज करंट केस करंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट क्वेश्चन में A1 A2 देयर आर टू पार्टनर्स sharing profit and losses in the proportion of 2:1. So 2/3 and 1/3 their respective old share. New ratio of A1, A2, A3 is calculated as 1:1:1. So new PSR equal है और internal proportion A1, A2 का same नहीं है, इसलिए first requirement again to calculate sacrifice. Sacrifice के लिए old share minus new share. A1 का old share 2/3, A2 का 1/3 minus their new share 1/3. तो A1 is the only sacrificing partner और A1 का sacrifice है 3/9. A2 न्यूट्रल पार्टनर है, A2 का कोई रोल नहीं है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ A3 शेयर, उसका शेयर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए गुडविल की जो भी एंट्री है उसके लिए एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है A1 और A1 को गुडविल का अमाउंट मिलेगा। नाउ A3 का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 10,000 रुपए और A3 का शेयर ऑफ गुडविल है 3,000 जो कि वो कैश में ला रहा है, तो टोटल 13,000 इज कैश कॉन्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू A3 कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक में 13,000 डेबिट होगा, टू A3 कैपिटल में 10,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल इज 3,000। नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू ओनली वन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज A1, तो PFG टू A1's कैपिटल 3,000 एंड दिस एंटायर अमाउंट व्हिच इज क्रेडिटेड टू A1 बाय वे ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय हिम, वो ओल्ड पार्टनर A1 विड्रॉ कर रहा है, इसलिए A1 कैपिटल टू बैंक एंट्री होगी 3,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 में J and T देयर आर टू पार्टनर्स और sharing profit and losses in the proportion of 3:1. M is admitted with 1/3 sharing profit. M's goodwill is 15,000 and which is contributed in cash and out of which 40% is withdrawn by old partners. 40% is withdrawn by old partners. So necessary calculation. अब यहाँ पे J और T का agreed ratio दिया गया है after admission of M. तो first calculation is new PSR. उसके बाद कैलकुलेशन की जरूरत होगी हमें सेक्रीफाइस की, तो पहले न्यू पीएसआर के लिए टोटल प्रॉफिट 1 एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/3, सो 1 माइनस 1/3 रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 2/3। अब इस 2/3 को पार्टनर J और T में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एग्रीड रेशियो दिया गया 1:1, एग्रीड प्रपोर्शन इज 1:1, सो 2/3 का हाफ हाफ करने पे J का न्यू शेयर आएगा 1/3, T का न्यू शेयर आएगा 1/3, जिसके साथ M का शेयर 1/3 अटैच करने पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ JTM इज 1:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ JT एंड M इज 1:1:1। अब न्यू के बाद हमें सेक्रीफाइस ढूंढना है, तो सेक्रीफाइस इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 3/4 1/4 इज देयर ओल्ड शेयर एंड 1/3 इज देयर न्यू शेयर, तो J का सेक्रीफाइस है 5/12 और T का गेन है 1/12, T का गेन है 1/12। अब सिचुएशन ये है कि M के एडमिशन के वक्त वो गुडविल का 15,000 कैश में ला रहा है और यहाँ पे T गेन कर रहा है, इसलिए T के गेन जितनी अमाउंट गुडविल की हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो शेयर इज टू गुडविल अमाउंट में 1/3 के लिए न्यू पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 15,000 है, तो 1/12 के लिए T के गेन की अमाउंट कितनी होगी, तो उसकी गुडविल की अमाउंट आ रही है 3750, T के गुडविल की अमाउंट आ रही है 3750। नाउ नेसेसरी एंट्री में पहले गुडविल कैश में ला रहा है न्यू पार्टनर, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, फिर टी गेनिंग पार्टनर है, सो टी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3750 एंड ओनली वन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज देयर, ओनली वन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज J, तो J का अकाउंट क्रेडिट होगा 18750, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 15,000, टी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750 एंड टू J's कैपिटल अकाउंट 18750। J को जो गुडविल का पैसा मिल रहा है उसका 40% वो विड्रॉ कर रहा है, तो 18750 का 40% होगा 7500, उसके लिए एंट्री होगी J's कैपिटल टू बैंक, J's कैपिटल टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में NP देयर आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, सो 3/5 एंड 2/5 उनके रिस्पेक्टिव ओल्ड शेयर है। G is admitted for 1/4 share in profit, sacrifice of N and sacrifice of P is to be computed here. Firm's goodwill is 1 lakh. G's share in goodwill is to be calculated. G का शेयर है 1/4, तो 1 लाख में से G का शेयर 1/4 निकाले तो 25,000 है। G अपने हिस्से का 60% गुडविल ला रहा है, तो 25,000 जो G का हिस्सा
90 प्लस 45 प्लस 36, टोटल अमाउंट 1,71,000 है, जिसको A1 और A2 में 15:4 में हम डिवाइड करेंगे. सो 1,35,000 एंड 36,000 विल बी क्रेडिटेड. अगर हम ये एक एंट्री की जगह 3 एंट्री सेपरेट पास करना चाहे तो भी कर सकते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो 15:4 के रेशियो में PFG 90,000 to A1 to A2, then A5's capital 45 to A1 to A2, and then A3's capital account debit 36 to A1 to A2. इस तरह से सेपरेट भी ये तीनों एंट्री हम पास कर सकते हैं फॉर गुडविल कंपनी.